السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم و معزز و مکرم سامعین و ناظرین و حاضرین اکرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر و احسان، جس کی توفیق، جس کے فضل، جس کے کرم سے اور آپ اس پاک بزم اور مجلس کا حصہ ہیں، اور یقیناً جس ماہ سے اور جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یقیناً اللہ رب العالمین کا ایک خصوصی کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرہ مبشرہ جیسی عظیم ایام ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس ماہ عظیم ذی الحجہ اور بالخصوص عشرہ ذی الحجہ میں جو کام کرنے والے نیک اعمال کرنے کی تو اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ چونکہ آج کا درس اسپیشل طور پہ، خصوصی طور پہ سیرت ابراہیم علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اوپر رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں قربانی کے چند ایسے احکام مسائل جو عرف عام میں مشہور ہے لیکن اس کا تعلق کتاب و سنت سے نہیں ہے، اس پر بھی خاص چرچا یا بحث کی جائے گی، اور بقیہ جو قربانی کے چھوٹے موٹے مسائل جو اس بھائی بہن کو نہ معلوم ہو وہ دریافت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے۔ اب جب یہ نام آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک بڑا ہی عجیب و غریب انوکھا نام، عجیب شخصیت، تو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس نام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں بیان کیا جائے، یا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایثار و قربانی پر بات کی جائے، تو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صبر پر بیان کیا جائے، یعنی کس پر بیان کیا جائے۔ ہر پہلو پر اگر ہم غور کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ہر پہلو پر ثابت قدم رکھا۔ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ کا ان کو ہوا، یہ اس حکم سے نہ لرزائے نہ کترائے، نہ اس سے اپنے آپ کو گھبراہٹ کے شکار کیے، بلکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کو اپنے لیے آب حیات سمجھا۔ یہ سمجھا کہ ان کا رب ان سے کچھ مطالبہ کر رہا ہے، اور ایک بندہ ہونے کے ناطے ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اس مطالبے کو پورا کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ایک اسوہ ہے، ایک سنت ہے، اور ان کی بے شمار ایثار و قربانی ان کی زندگی میں، اور سب سے زیادہ ان کی زندگی میں اگر کسی چیز کا چرچا یا ذکر ہوتا ہے تو ان کی آزمائش کہ ان کی پوری زندگی صرف یہ نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلے گئے، یہ ایک آزمائش نہیں تھی، پوری زندگی ان کی آزمائش سے بھری ہوئی تھی۔ پیدا ہو رہے ہیں جس گھر میں، جس ماحول میں، اگر ہم شروعات سے بات کریں گے ترتیب، تو ایک بچے کے طور پہ جس گھر کے اندر پیدا ہوئے، وہ گھر سب کے سب شرک اور بدعت میں ڈوبا، مشرک تھے، ایک اللہ کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، ہے نا۔ اس گھرانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب آپ جوان ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جوانی کس کو کہا جاتا ہے کہ جوان اکثر 20-22 سال کے لڑکے یا لڑکی کو کہا جاتا ہے، اور 20-22 سے لے کر 40 تک،
20-22 से नीचे अगर हम आते हैं 18-16 में, तो वो एक नौशिकवे की मतलब उम्र होती है जिसमें इंसान को अक्ल और फहम बहुत कम होता है, बदन के अंदर ताकत तो होती है लेकिन सूझ बूझ नहीं होता। लेकिन जवान ताकत के साथ साथ सूझ बूझ वाला भी होता है, उसको जवान कहा जाता है कि ताकत भी है, सूझ बूझ भी है, क्या सही है क्या गलत है, क्या दिन है क्या रात है, इन सभी चीजों का इल्म हो। सबसे पहली चीज याद रखिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस घराने में इनकी विलादत हुई वो घराना दर हकीकत अल्लाह को मानने वाला नहीं था। इनके बाप के बारे में कुरान में जिक्र है कि आज़र नाम था, इनके वालिद मोहतरम थे, और इन्होंने जब होश के नाखून लिए, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शऊर बनाया, शऊर दिया और साथ ही साथ इनको अकल और फहम अता किया, तो इन्होंने सबसे पहले जिस चीज की खोज की वो खोज था कि इनका रब कौन है, ये किसकी इबादत है। देखते बहुत कुछ थे, हमारे अब्बा क्या कर रहे हैं, हमारे बस्ती वाले क्या कर रहे हैं, हमारे गांव वाले क्या कर रहे हैं, है ना, देखते बहुत कुछ थे। लेकिन अल्लाह ने एक चीज इनके जहन में बैठा दी कि आया हमको किसने पैदा किया, हम किसके बंदे हैं, या अगर हम इबादत भी करें तो हम किसकी इबादत करें। इन्होंने सबसे पहले इस चीज की खोज की कि मैं किसकी इबादत करूं, या इबादत के काबिल और इबादत के लायक कौन है। और इस तरीके से अपने कौम के लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने मुखातब करके फरमाया, जब ये सितारे निकले तो इन्होंने अपने कौम के लोगों से कहा, देखो कितना अच्छा जगमगा रहा है, कितनी अच्छी लाइटिंग है ना, कितनी अच्छी खूबसूरती है इसके अंदर, ये खूबसूरत सितारा नजर आ रहा है, बड़ा चमकदार, क्या तुम्हें मानते हो कि ये अल्लाह है, ये खुदा है? अगर मानते हो तो देखो सुबह हुई, सितारा छुप गया, गायब हो गया। जो रात के अंधेरे में आसमान की जीनत बना हुआ था वो दिन के उजाले में गायब हो गया। फिर दूसरे दिन चांद को देखते हुए अपने कौम के लोगों से खिताब किया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, क्या यही खुदा है हमारा, हम सबों का? ये भी कितना अच्छा खूबसूरत है, गोल है या कटीनी है या बड़ी अच्छी इसकी बनावट है, और ये आसमान के को 4 चांद लगा रहा है, खुद ही इसका नाम चांद है ना। क्या ये अल्लाह है? एक दिन का उजाला होता है और चांद छुप जाता है। लोगों को समझाने का जो तरीका था इनके अंदर, उस तरीके पर हमारा गौर करें, क्योंकि आज ज्यादा जरूरत हम लोगों को है कि हम उस इब्राहिम को अपनी जिंदगी के अंदर लाएं। वो छुप गया। फिर सूरज दिन में निकला, बड़े जबरदस्त चमकदार उजाला करते हुए, रोशनी देते हुए पूरी दुनिया को रोशन किया। हजरत इब्राहिम सलाम ने कहा, कुरान ने कहा इधर अशमसा, जब सूरज को हजरत इब्राहिम सलाम ने देखा, कौम के लोगों से कहा ये खुदा है, ये अल्लाह है हम लोगों का। लेकिन देखो शाम होती है, ढल गया। कौम के लोगों से कहा ये तो ढल जा रहा है, कोई टिक ही नहीं पा रहा अपनी जगह पर, 12 घंटा के बाद रोटेट हो जा रहा है। उसके बाद हजरत इब्राहिम सलाम ने कहा कि नहीं, देखो अल्लाह वो है तो कभी खत्म नहीं होता, कभी गायब नहीं होता है, कभी आंखों से ओझल नहीं होता। अल्लाह कौन है? अव्वल है और आखिर है, वल अव्वल वल आखिर, वही अव्वल है वही आखिर है, उसी ने हम सबको पैदा किया। मेरा रब वो है जिसको कोई चीज ढाक नहीं सकती। ये एक तरीका, एक समझाने का एक तरीका है कि इब्राहिम सलाम ने अपनाया। सबसे पहले इनके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी इनके अंदर पाई जाती है वो था मुकालमा। मुकालमा कहते हैं दो लोगों के दरमियान बहस और तकरार, यानी बातचीत, कन्वर्सेशन को भी कह सकते हैं। क्या बात है? अगर आज के जमाने में हमारी और आपकी अखलाक की बात आ जाए या दावत दीन की बात आ जाए तो क्या होता है कि हम अगर तबलीग करते हैं तो तबलीग के अंदर हमारे अंदर एक चीज क्या हो जाती है कि तंज, तबलीग के अंदर तंज नहीं होना चाहिए, हम तंज मार देते हैं। इसी मिसाल के तौर पर हमने इनको समझाया या आपको समझाया कि भाई आप नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़िए। एक दिन समझाया, 2 दिन समझाया, 3 दिन समझाया, आप नहीं पढ़े। एक हफ्ते के बाद जब हम गुजर रहे, आपको देख रहे तो आपस में बात करके देखो कितना बेशरम आदमी है, समझाने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ता। ये तबलीग नहीं है, ये तबलीग नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा काम जो है, खुद अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल के बारे में कहा, वमा अलैना इल्लल बलाग, है नबी आपके ऊपर सिर्फ पहुंचाना है, हिदायत हम देंगे,
कौन नमाज पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, किसको ईमान की दौलत से नवाजना है, किसको काफिर बनाना है, ये आपके इख्तियार में नहीं। आपका कंट्रोल कितना है, पहुंचा देना है। भाई हमारा भाई है, मुसलमान भाई, इस्लामी भाई नहीं है, गैर मुस्लिम भाई, उसको तबलीग करके पहुंचा दिए कि भाई अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज नहीं, नमाज पढ़े, रोजा रखे, माने ना माने वो हमारा मैटर नहीं है। लेकिन हम किसी के पीछे मेहनत करते हैं, है ना, मेहनत करने के बाद वो रास्ते पर नहीं आता है तो हमको लगता है इस करना है, ये तबलीग का हिस्सा नहीं। हजरत इब्राहिम सलाम के वालिद ही शिर्क में डूबे हुए, है ना, तो हम उनकी सीरत में देखें इन लोगों की कन्वर्सेशन को, जो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने सूरह मरियम के अंदर बयान किया, आयत नंबर 45-45 के अंदर। क्या बेहतरीन गुफ्तगू थी, बतनी समझाने का तरीका, दावत देने का तरीका, ये सब हम लोगों को सीखने की जरूरत है, बिलखुसूस उलमा इकराम भी कभी लोग तेजी हो जाते हैं। कोई नहीं आ रहा नमाज पढ़ने तो उसकी कमजोरी पकड़ लेते हैं, अरे आप भी तो नहीं आते, ये गलत बात है। हम लोग किसी पर निगहबान नहीं है, लस्ता अलैहि बिमुसैतिर, ऐ नबी आप किसी के ऊपर निगहबान नहीं है। वो क्यों नहीं मुसलमान हुआ, वो क्यों नहीं नमाज पढ़ रहा, वो क्यों नहीं ज़कात दे रहा, ये हम लोगों का काम तो है ही नहीं। हमारा काम यह है कि अल्लाह ने जो दीन हम तक पहुंचाया हम तक पहुंचा दे, बाकी माने ना माने। तो देखिए बाप और बेटे के दरमियान एक गुफ्तगू है। बेटा कौन है, नबी है, पैगंबर है। बाप कौन है, मुशरिक है, काफिर है। इसके बावजूद बाप बेटे की जो बातें हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं। हम सूरह मरियम की तरफ जाते हैं तो अल्लाह ने कहा इज़ क़ाल लि अबीही, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अभी मतलब अरबी का होता है बाप, अब मतलब बाप, मतलब माँ, इसी से अभी मेरे बाप, अभी है अपने बाप से। इज़ क़ाल, जब कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अभी अपने बाप से, क्या कहा, लिमा ताबुदू, आप इन लोगों की इबादत क्यों करते हैं, लिमा ताबुदू, क्यों आप इन लोगों की इबादत करते हैं, मा ला यस्माउ, जो ना सुन सकते हैं, वला युबसिरु, जो ना देख सकते हैं, वला युगनी अनका शैआ, और ना आपको किसी चीज से बेनियाज कर सकते हैं। किसी चीज से बेनियाज करने का मतलब क्या हुआ, बेनियाज करने का मतलब ये हुआ कि हम जैसे हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो हम हमारे पास कुछ परेशानी है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस परेशानी से निजात दे, आजाद कर। तो हम ऐसे रब को पुकारते हैं जो हमारी पुकार को सुनता भी है, जो हमारे हालात को देखता भी है, और जिसके पास एक कुदरत है कि हमारी परेशानी को दूर करते है ना। ये तो अल्लाह का करम है, तो हम ऐसे रब की इबादत और पूजा करते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते, गैरों को पुकारते हैं, चाहे जो भी अकायद इनके ताल्लुक से रखें, तो वो अंधेरे में कि हमें बताइए, ताजुब की बात है, वो ऐसी चीज को पुकार रहे जो सुन सकते हैं, ना देख सकते हो, ना उनको उनकी परेशानी से छुटकारा दे सकते हैं। हजरत इब्राहिम सलाम ने कहा अपने बाप से कि या अबती, ऐ मेरे बाप, क़ाल लि अबीही या अबती, ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ मेरे अब्बा, वालिद मोहतरम, लिमा ताबुद, क्यों आप इबादत करते हैं, माला यस्माउ, ऐसे लोगों की जो ना सुन सकते, वाला युबसिरु, ना देख सकते, वाला युगनी का शैआ, और ना ही आपको किसी चीज से बेनियाज कर सकते हैं। फिर आगे कुरान कह रहा है या अबती, ऐ मेरे बाप, इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म, तहकीक के मुझे अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा है, मेरे पास इल्म आया है, मैं इल्म वाला हूं नहीं, जाअनी मेरे पास आया है, मिनल इल्म, एजुकेशन, तालीम, नॉलेज, यानी एक पैगंबर, एक नबी ये कह रहा है कि जो कुछ मेरे पास आया है वो मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे रब ने मुझे अता किया है। ऐ मेरे रब, बेशक मेरे पास वो इल्म आया है। आगे अल्लाह ने क्या कहा, मालम जाति का, जो तुम्हारे पास नहीं है, जो आपके पास है। ऐ मेरे रब, ऐ मेरे बाप, अब्बू जान, इन्नी कद जाअनी मिनल इल्म, ताकि कि मेरे पास वो इल्म आया है, मालम जाति का, जो आपके पास नहीं है। आप नहीं जानते कि ये भूत है, ये मूरत है, ये कुछ भी नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आगे इब्राहिम सलाम ने कहा फत्तबिअनी, तो आप मेरी इत्तिबा कीजिए।
آپ میری اتباع کس لیے کریں؟ کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، آپ میری اتباع کیجئے۔ اہدی کا صراطا سویا، آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اس لیے میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں، میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے جاؤں، میں لے جاؤں۔ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاؤں، لیکن ہدایت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں ہے۔ پھر آگے اگلی آیت میں اللہ نے کہا یا ابتی، اے میرے ابو جان، پھر وہی جملہ۔ حالانکہ ایک بار یا ابتی کہہ دیتے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک بار آپ کو مخاطب کرتے ہیں، بار تھوڑا دینے کی ضرورت ہے، آپ بھی بول سکتے ہیں، وہ بھی بول سکتے ہیں، لیکن یہ خوبصورتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار یہ کہنا ہے اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، یعنی ایک طریقہ ہے دعوت دینے کا۔ آگے اللہ نے کہا یا ابتی، اے میرے ابو جان، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہیں کریں۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں کہ ان کے باپ آدر شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے نا۔ اب ذہن میں بات آنی چاہیے کہ شیطان کی نہیں پوجا کرتے تھے، وہ لوگ مورت بناتے تھے نا، چاہے پتھر کی یا مٹی کی، اس کو پوجتے تھے۔ پھر اللہ نے شیطان کیوں کہا؟ اللہ نے اس لیے کہا کہ اللہ کے علاوہ جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں وہ سب راستہ شیطان ہے، سمجھے نا۔ شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کو نہ پکارے، یا اگر اللہ کو پکارے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہرا ہے۔ شیطان کو چیز چاہتا ہے ایک چیز سرے سے الگ ہو جائے، یہ تو ممکن نہیں لگتا ہے، تو دکھتا ہے شیطان کے لیے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے، ہم بول رہے ہیں اللہ کو چھوڑ دو، غیر مسلم بن جاؤ، بولے ہاں مسلمان، اب کیا کریں؟ چلو ایک راستہ ہے، ایک آپشن ہے، کیا؟ جو اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں اس میں کسی کو دوسرے کو شریک ٹھہرا دے۔ شیطان کو گلاتا ہے، بڑے بڑے بزرگ ہیں، پوری کر دیتے ہیں مرادیں، ارے اللہ سے بہت قریب ہے، ان کو ہی بول دو تو کافی ہے، کوئی ضرور نہیں کہ اللہ کو بولنا ہے نا، شرک کی طرف ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم لا تعبد الشیطان، اب شیطان کی عبادت نہیں کی، تھے مورت، لیکن اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ سب شیطان کا راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں ہے۔ آگے اللہ نے کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب، اے میرے باپ، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، میں آپ کے تعلق سے ڈرتا ہوں کہ ان یمسک عذاب، کہ آپ کو کوئی عذاب نہ آ جائے، من الرحمن، رحمان کی جانب سے، فتکون للشیطان ولیا، اور کہیں آپ شیطان کے دوست نہ بن جائے، مجھے ڈر ہے اس بات کا۔ یہ سورہ مریم آیت نمبر 45 ہے، 42 سے لے کر 45 تک، 42 43 44 45، 4 آیت۔ یہ پہلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پہلا جو دعوت کا کام تھا اپنے باپ کو۔ اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہر مسلمان تبلیغ پہلے اپنے گھر میں کرے، یہ سب سے پہلا درس۔ ہمارا گھر بگڑا ہوا ہے، دوسروں کی طرف پورا فوکس کیے ہوئے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ زکات نہیں دیتا، وہ اچھا نہیں کرتا، وہ برا نہیں کرتا، اب گھر میرا پورا بگڑا ہوا۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کس کو سمجھایا؟ اپنے باپ کو، اپنے باپ کو سمجھایا کہ نہیں میرا گھر صحیح نہیں ہے، اور ایک سینٹیمنٹ بھی محبت لگا ہوا ہے کہ میرے ابا پیدا کیا ہم کو، کیسا ہم لوگ ذرا سوچ اللہ نہ کرے ہم جنت میں جائے، ہمارے گھر والے جنت میں نہ جائے، سوچ کر خراب لگتا ہے، وہ تو پیغمبر تھے۔ تو انہوں نے کتنا پیارا لفظ استعمال کیا، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، یہ جملہ انہوں نے بار بار کہا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ مریم، اس کے بعد ہی آیت میں 46 میں اللہ نے بیان کیا قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، جب انہوں نے کہہ دیا اپنے باپ سے ساری بات بتلا دیا کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کے دوست نہ بن جائیں، کہ ڈر ہے کہ اللہ آپ کو کوئی عذاب نہ نازل کر دے آپ کے اوپر، تو اب بیٹے نے کہہ دیا، اب باپ کی باری تھی، اب باپ کہہ رہا ہے، قال آزر نے کہا ان کے باپ نے اراغب انت عن الہتی، تو میرے معبود سے بے رغبتی دلا رہا ہے ہم کو، ابراہیم تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دوں، یہ چاہ رہا ہے
कि हमारे जो पुरखों से चली आ रही है, तुम्हारे कौल पर, तुम्हारी बात पर मैं उनको नजरअंदाज कर दूं? नहीं, नहीं हो सकता। काला अरागिबुन अन आलिहती या इब्राहिम, यहाँ या इब्राहिम है, या इब्नी नहीं है मेरे बेटे, यही फर्क होता है। दीन के काम करने वालों को जो दीन से काम हटे रहते हैं उनमें बुनियादी फर्क है। जो दावत का काम कर रहे हो क्या करे, आए मेरे अबू जान, ये भी तो कह सकते थे आए मेरे बेटे जान, आए मेरे लगते जिगर, नहीं, या इब्राहिम, है इब्राहिम तू बेरगबती दिलाना चाहता है, किससे? हमारे माबूदों से। याद रखो, ला इल्लम तंतही, अगर तुम अपने इन्हीं हरकतों से बाज नहीं आए। कौन सी हरकत? हमारे माबूदों को बुरा भला कहने वाली हरकत, एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाली हरकत। ला इल्लम तंतही, अगर तुम बाज नहीं आए, लअरजुमन्नका, तो मैं तुमको पत्थरों से मारूंगा, पत्थर से मारूंगा तुमको। लअरजुमन्नका उर्दू का इस्तेमाल होता है रज्म करना। रज्म मतलब क्या होता है? कमर तक घसा कर जमीन में पत्थर मारा जाए, उसको रज्म करना। जो लोग हज करने जाते हैं लोग कहते हैं रमिए जमरात, शैतान को पत्थर मारना, ताकि समझने में आसानी हो। वही लगे अर्जुमन्ना, रमी मतलब होता है फेंकना, अरबी के अंदर रमी अरबी मतलब होता है कोई किसी चीज को फेंकना, जमरात पत्थर फेंकना। लअरजुमन्ना का, अगर तुम बाज नहीं आए, ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, तुमको मैं पत्थर से मारूंगा। वह जुर्मी मलिया, और ये कि तुम इंजर्ड हो जाओ, सही सालिम नहीं हो, जब मैं मारूंगा तुमको तकलीफ होगी। ये बात जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा ने उनको जवाब में कहा। यहाँ पे एक नुक्ता याद रखें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितनी बेहतरीन तरीके से अपने घर वालों को समझाया, क्योंकि इनकी सीरत बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है। मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर तौर पे सारी बातों को टच करते हुए। ये पहली बात इसलिए मैंने ज़्यादा वक्त लिया कि ये पहला दावत उनका था अपने घर वालों की। इसमें सबसे बड़ी नसीहत ये है कि हमारे दावत और तबलीग के सबसे ज्यादा हकदार हमारे घर वाले, हमारे घर वाले। और तो मैंने पहले बात बताया कि चांद को देखा, सितारे को देखा, इसी जुमले के बाद वो चले गए अपने घर, अपने अब्बा को समझाने के बाद। और अब्बा ने कहा कि मैं तुम्हें पत्थर से मारूंगा, अब तुम इंजर्ड हो जाओगे, सही सालिम नहीं रहोगे, वहां जो भी मनिया। तो वहां से चले गए और रात के वक्त अपने घर के आंगन में थे और कौम के लोगों को जमा कर दिया। अब कौम के लोगों से पूछ रहे हैं, चलो अब्बा को समझाया, अब्बा तो नहीं समझे, शायद इनमें से एक दुआ भी समझदार निकल जाए, चांद सितारों की मिसाल के जरिया। तो ये भी एक तबलीग का तरीका है कि जब किसी को समझाए और कोई ना समझ पा रहा हो तो मिसालें पेश करे। कुरान में अल्लाह मिसाल देकर समझाता है कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे तो उस दाने जैसी जिसको तुम बोओगे उससे 7 मजे निकलेंगे, 7 बार में 100 दाने होंगे, है ना। ननका मिसालों के जरिया अल्लाह ताला मक्खी की, मच्छर की मिसाल दे रहा है सूरह बकरा के अंदर। मिसाल से भी हम समझा सकते हैं, उन्होंने इब्राहिम सलाम ने मिसाल से समझाया। अब क्या हुआ, कौन के लोग आग बबूला तो बोल रहा है कि मेरा अल्लाह वो है जो जाहिर भी होता है, गायब भी होता है, जो हाजिर भी है, नाजिर भी है। और कह रहा है कि तुम लोग ऐसे लोग इबादत करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह शूरा के अंदर आयत नंबर 70 से 82 तक मुख्तसर में बयान कर देता हूँ कि कैसे आग बबूला हो। अल्लाह ने कहा इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही, और जब इब्राहिम सलाम अपने बाप अपनी कौम से कहा, दोनों से कहा, व इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही, क्या कहा, मा ताबुदूना, तुम क्यों इबादत करते हो, किसकी इबादत करते हो। कालू, उन्होंने कहा नाबुदु असनामन, हम तो बुतों की इबादत करते हैं। असनाम सनम से है, स्वाद नून मीम सनम, सनम को अरबी के अंदर कहते हैं बुत, है ना। नाबुदु असनामन, हम तो बुतों की इबादत करते हैं। अल्लाह ने कहा कि फज़ल्ला फनज़ल्लु अलैहा आकिफीना क़ाल हल यस्मऊनकुम तदऊना। इब्राहिम ने कहा कि इब्राहिम सलाम ने कहा कि जिनको तुम पूजते हो, उन्होंने जवाब दिया कि कुछ भूत है जिनको पूजा करते हैं और हम इन्हीं के सेवा में लगे रहते हैं। फनज़ल्लु, और हम ला आकिफीन, इसी के सेवा में लगे रहते हैं। सेवा मतलब खिदमत, इन्हीं बुतों की खिदमत में रहते हैं। आगे बयान हुआ तो उसने पूछा क्या है तुम्हारी सुनते हैं। क़ाल हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊना। देखिए इब्राहिम ने कितना बेहतरीन सवाल किया, उन्हीं से किया। मैंने पूछा किसकी इबादत करते हो, हम तो बुतों की इबादत करते हैं और इन्हीं की सेवा करते हैं। हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊना, जब तुम पुकारते हो क्या तुम्हारी पुकार को सुनते हैं। यानी जोर ऐसा कीजिए, बातें ऐसी कीजिए जो दिल में घर कर जाए। ये कैसे होगा, हम बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे, तो बुत है खुद ही बोलेगा, जो इबादत कर रहा है वही एक्सेप्ट करेगा, नहीं सुन नहीं सकता। अल्लाह ने कहा हल
यस्माउना की तदऊना औ यनफउनकुम औ यजुर्रुना, क्या वो तुमको नफा पहुंचाते जबकि तुम घाटे में होते हो? जब तुम मुसीबत में, घाटे में, नुकसान में पुकार तो क्या तुमको? अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा शुरू किया। अजान हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तुम उनको पुकारते हो तो क्या तुम्हारी पुकार को सुनते हैं, या जब तुम नुकसान में होते हो तो क्या तुमको फायदा देते हैं? देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया, जो असल चीज बताना मकसद था। जब चोट लगा, सवाल जब बिल्कुल दिल पर किए कि भाई तुम लोग किसकी इबादत करते हो, तो हम बुतों की इबादत करते हैं। अच्छा, और लोग बोला कि हम इबादत ही नहीं करते, उनके रख रखाव भी करते, देख रेख भी करते। तो इब्राहिम सलाम ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि हल यस्माउना इस्तदऊन, जब तुम उनको पुकारते हो क्या तुम्हें पुकार को सुनते हैं? खामोश है। जब तुम्हें नुकसान पहुंचता है तो क्या तुमको फायदा देते हैं? तो देखिए जवाब भी लेना चाहिए कि हाँ फायदा देते हैं कि नहीं, हाँ सुनते हैं कि नहीं। देखिए जवाब उन्होंने क्या दिया, कालू बल वजदना आबा अना कजालिक यफअलून, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही करते हुए पाया है। यानी बिल्कुल इसमें लॉजिक समझने की बात है कि एक आदमी जब कहीं अपनी गलती पर अड़ जाता है, एक अलग चीज है, और जब वो उस गलती पर अड़ने से साबित हो जाता है कि गलत है तो इधर उधर बातें करने लग जाता है। सवाल क्या हो रहा है, जवाब क्या हो रहा है? क्या वो तुमको फायदा पहुंचाता है? ये बुत तुम्हारे जिसको तुम मदद करते हो उनको नुकसान से बचाता है? कालू बल वजदना आबा अना कज़ालिका यफ़अलून, ये जवाब है कि नहीं, हम तो बल्कि ऐसा है कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही पाया। तो जवाब हुआ आपको शऊर है, आपको समझ है, आपको अकल है। तो मेरे भाई कहने का मकसद ये, हजरत इब्राहिम सलाम की ज़िंदगी से ये बहुत बड़ी नसीहत मिल रही है कि आप बात बिल्कुल फैक्ट बयान करें, इधर उधर की बात कभी नहीं करें, खासकर तबलीग के मैदान में बेमतलब की बात नहीं करनी चाहिए, ना किसी को पर्सनल अटैक करना चाहिए कि आप तो ऐसे करते हैं, आपके घर पे ऐसा नहीं। हमारा काम किसी को समझाना, ना कि दलील करना। ये भी एक सबक है इब्राहिम सलाम से मिल रही है। अब इसके बाद इब्राहिम सलाम ने क्या किया, हजरत इब्राहिम सलाम ने कहा कि अब एक और तरीका अपनाना। ईद का दिन था उनके यहाँ, मेला लगता है बहुत दूर दराज, किसी यहाँ घर बस्ती है तो मेला असुल में लग रहा है, सब लोग पूरे आसपास के तरह के लोग भी जमा होते, सब कबीले गांव वाले ये लोग जाने लगे। तो हजरत इब्राहिम सलाम ने कहा चलो इब्राहिम तुम भी चलो। उन्होंने कहा ना सकीम, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता। पूरी बस्ती खाली हो गई, बस्ती खाली हो गई, तब ये उठे और उस रूम के अंदर गए जहाँ पर बड़े बड़े बुत या सारे बुत रखे हुए, और आपने कुल्हाड़ी उठाई और सारे बुतों को पहले तो कुछ कलाम किया, खाओ ये फल रखा है, खाते क्यों नहीं तुम लोग? कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ था, क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ तुम लोग। लेकिन इब्राहिम सलाम जानते हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो मिट्टी और पत्थर से बनाए गए हैं, ये असल इंसान है ही नहीं, तो जवाब क्या देंगे? असल अकायद जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो असल फैक्ट है। और उन्होंने सारे बुतों को तोड़ दिया सिवाय बड़े बुत के, और कुल्हाड़ी जो है उनके गर्दन पर लटका दिया। ये भी एक तरीका था समझाने का, है ना। लेकिन मेरे भाई आज के जमाने में तरीका आप ना अपनाएं, ये भी मैं बयान करता चलूं। उन्होंने ऐसा कर दिया कि वो पैगंबर के खुसूसी उनके साथ अल्लाह की मदद थी, तोड़ दिया और बड़े बड़े कंधे पर रख दिया। अब रखने के बाद सारे लोग जब मेले से वापस आए तो आने के बाद लोग माथा टेकने जाते हैं अपने माबूदों को। दरवाजा खोला तो देखकर मंजर को हैरान रह गए, हर तरफ टूटा फूटा और बिखरे हुए सामान। मन कसरल असनाम, बुतों को किसने तोड़ा? सब बात है, मन कसरल असनाम, मन कसरल असनाम, किसने तोड़ा बुतों को? बात करते करते किसी ने कहा कि एक लड़का था जो अक्सर बुतों के बारे में जिक्र करता है, और इत्तेफाकन वो यहाँ मौजूद भी था, वो मेले में नहीं गया। माँ हुआ, कौन है वो? उसका नाम इब्राहिम है। बुलाओ इब्राहिम। बुलाए गए, बुलाने के बाद उनसे पूछा कि मन कसरत असनाम। उन्होंने कहा कि अरे भाई हमसे पूछ रहे हो, ये कौन सी बात है, आपके बड़े बुत तो यहाँ थे, सब कुछ देखे इन्होंने, क्या हुआ नहीं हुआ, कौन आया कौन गया, कैसे तोड़ा कैसे नहीं, तो सब पूछ लीजिए इनसे। पूछे, पूछते क्यों नहीं, तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो, इनसे पूछो, तो तुम्हारे माबूद है, तुम्हारे खुदा है, इनको तुम खुदा का दर्जा देते हो, पूछो इनसे कि क्या करें, कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता, ये कैसे जवाब दूंगा। मैं भी यही बताना चाहता हूँ, मैं भी तुम लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जो आदमी तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकता, सुन नहीं सकता, वो कैसे तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा।
लेकिन एक सेंटिमेंट की बात थी, उनके दिल को ठेस लगी थी, बहुत चोट लगी थी कि हमारे बुतों को जो तोड़ दिया। बोला कि नहीं, इसको सजा इसको दी जाएगी, इस सजा के लायक है, ये सजा इसको देना पड़ेगा, वरना ये चुप नहीं होगा। और इस तरीके से कुरान ने नक्शा खींचा सूरह अंबिया आयत नंबर 68 के अंदर। कुरान ने कहा फकालू हर्रिकुहु वंसुरु, कि आग को जलाओ और उसको क्या करो, रोशन करो, मतलब भड़काओ। वंसुरु, उसको भड़काओ। इन कुंतुम फाइलिन, वंसुरु आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलिन। और ये कि अब देखते तुम कौन बचाता है, बुलाओ अपने मामू की, तुम इब्राहिम इबादत करते हो। आग को भड़का दिया, इतनी जबरदस्त आग। और ये फैसला हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में समूचा डाल दिया जाए, उनको ये सजा तय हुई, मुकर्रर की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग से कहा कालू या नार कूनी बर्दन सलामा अला इब्राहिम। अल्लाह ने कहा कि आग, ना सिर्फ ये कि तू बर्द कहते हैं ठंड को अरबी के अंदर, ना ये कि तुम ठंडी हो जा, कूनू बर्दन बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, और इब्राहिम पर सलामती के बन जाए, सलामती वाला बन जाए। अब सोचिए, आग को अल्लाह ने हुक्म दिया, वो आग जो इंसान के लिए खाने पकाने और दीगर चीजों के काम आते हैं, तो जलने के काम करता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मामले में क्या किया गया, आग को अल्लाह ने हुक्म दिया पूरी बर्तन व सलाम अला इब्राहिम, ठंडी हो जा, और ये के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर सलामती वाली बन जाए। और उसके बाद उनको काफी बस्ती छोड़ना पड़ गया। आप गए, उसके बाद सेहरा बैबा में गए, अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप अपने बाल बच्चों को छोड़कर आप आगे चले जाइए, जहाँ पर कोई दूर दराज तो कोई चीजें नजर नहीं आती थी, उस जगह पर इब्राहिम के बाल बच्चों को छोड़ दिया। अब आते हैं असल चीज की तरफ। ख्वाब में देख रहे हैं कि अपने बेटे को जबा कर, इन्नी अरा फिल मनाम है इन्नी अज़बहुका, ख्वाब देख रहे हैं। देखने के बाद दिन से बेदार हुए, क्योंकि इब्राहिम सलाम नबी थे, जानते थे कि नबी का ख्वाब सच्चा होता है। अल्लाह का हुक्म आया, ख्वाब में अल्लाह हुक्म दे या डायरेक्ट अल्लाह जिब्रील को भेज कर हुक्म देकर बात की, हुक्म तो हो चुका है, लेकिन एक तरीका यहाँ पे जो अपनाया, वो तरीका आज हम लोगों के अंदर, खासकर ये बाप और बेटे या जो औलाद है उसके रिश्ते में ये तरीका होना चाहिए। ये तरीका नहीं है। बहुत से गार्जियन समझते हैं कि हमने पैदा किया तो मेरा गुलाम है वो, बस ऑर्डर थोप देना है औलाद के ऊपर, उसको मानना होगा, अपना खाना पीने देंगे, भगा देंगे, अपना ननियाल जाओ, कहीं और जाओ। ये तरबियत हज़रत इब्राहिम की नहीं थी अपने बेटे के साथ। आपको अल्लाह का हुक्म हुआ, हज़रत इब्राहिम की क्वालिटी याद कर रहे हैं, जब अल्लाह ने हुक्म किया तो 100% करेंगे, लेकिन तरीके पर गौर करना कैसे करें। वैसे भी कर सकते हैं, इस्माइल जरा चलो जमा करना तुमको, नहीं हम कुछ नहीं सुनेंगे, हुक्म आ गया अल्लाह का, तुम्हारी बात तुम हाँ बोलो ना बोलो हम वही करेंगे। ये तरीका हो सकता था, लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरीका नहीं अपनाया। तो हम कुर्बानी करते हैं, हर साल दुनिया के मुसलमान कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी का जानवर, कुर्बानी का दिन याद रहता है, लेकिन जो बाप बेटे में जो गुफ्तगू याद नहीं रहती, वो असल चीज़ है कुर्बानी की। क्या बात हुई दोनों बाप बेटे में, ये बात बहुत अहम है। ये तो बेदार हो गए अपने बिस्तर पे, यानी सो उठ गए, मालूम था, गए अपने बच्चे के पास, बेटे के पास गए, कहा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, या बुनैया है मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने तुमको ख्वाब में देखा। बेटे का क्या देखा है बुझा, बताइए। बात थोड़ा मुश्किल तरीन है, लेकिन बयान करना भी जरूरी है। आप घबराइए मत, आप बयान कीजिए। कहा कि इन्नी अरा फिल मनामी अन तज़बहुका, ज़बह यज़बह मतलब ज़बह करना, उसको लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, क्या ज़बह करना। इन्नी अरा फिल मनामी अन तज़बहुका, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको जबा कर रहा हूं। माज़ा रायुका, क्या तुम्हारी राय है, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं कि तुम्हारी राय क्या है, क्या कहना चाहते हो, कुछ कहो। एक ये तरीका था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, और एक तरीका मैंने जो बताया नेगेटिव तरीका, कि बिल्कुल मुसल्लत हो जाना अपने औलाद के ऊपर कि मैं बाप हूँ, मैं मुसल्लत हो रहा हूँ और तुमको मेरी बात मानना पड़ेगा। क्यों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी मोहब्बत से बात की अपने बेटे से, मालूम है, क्योंकि उनको अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा था, पूरा भरोसा था अपनी तरबियत पे। जो तरबियत उन्होंने अपने औलाद की थी 100% श्योर थे कि मेरे बेटा सुनेगा भी और समझेगा। ये जुमला उन्होंने कहा, जैसे ये जुमला उन्होंने कहा, बेटे का भी जवाब आया फौरन, या अबतिफ अल माज़ा तुमर, बताना परेशान लग रहे हैं। अच्छा, बात यहाँ पे नहीं हो रही कि उंगली काटना है,
एक कान काटना है, एक आंख फोड़ना है, या एक पांव काट देना, एक हाथ काट देना, ये बात नहीं हो रही। बात हो रही जान से मारने की, जिसको लोग कत्ल कहते हैं, इंग्लिश मर्डर कहते हैं। ये बात कौन कह रहा है? एक बाप अपने बेटे से। अब हम में से जिसको अल्लाह ने औलाद दिया है, हम जाकर बोले कि बेटा सुनो, बेटी इधर आओ, बेचारे खेलते हुए आई, खेलती हुए आ रही बच्ची है हमारी, कितनी मोहब्बत करते हैं अपने औलाद से, हम करते कि नहीं करते? अल्लाह ना करे, अल्लाह का हुक्म आ गया कि भाई तुम हम सब आपको अपना बच्चा जबा करना है, अल्लाह का हुक्म, फरिश्ते आ गए। अब जिस बच्चे की खुशी और चेहरे देख को हम सोते उठते हैं, जिसकी चिंता, जिसकी फिक्र में हम दिन रात लगे रहते हैं, जिसके लिए हम कमा रहे हैं, ये तो दूसरे पे सुनने में बड़ा अजीब नहीं लगता है, लेकिन जब अपने आप को प्रैक्टिकल उस पोजीशन पे लाएं कि हमको अल्लाह ने, हम लोगों को अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि जाना अपने बच्चे से बात मत कीजिए, आपको उसको कत्ल करना है, हमको नहीं मालूम, अल्लाह का हुक्म आ गया। सोचे जिस बच्चे के लिए हम सब कुछ कुर्बान और हारने को तैयार है अपनी जिंदगी, हम उसे कहे हम अपनी बेटी से कहो इधर आओ, सारा इधर आओ, कल तुमको जवाब करना, आज करना है। आवाज नहीं निकलेगी हम लोगों की, अभी नहीं निकल रही, कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने कहा इन्नी राह फिल मनाम अन तज़बहू का, मैं तुमको ज़बह करते हुए देख रहा हूं अपने आप को। बेटे खामोश हो गए, साइलेंट हो गए। तो तरबियत क्या थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कि उन्होंने कहा कि अब्बा परेशान लग रहे हैं। ना ना ना, आप क्यों परेशान हैं? अरे भाई आप पैगंबर हैं, ये आपका ख्वाब नहीं, ये आपकी सच्चाई है, और ये हुक्म है अल्लाह ताला का। आप उसको ख्वाब कह रहे हैं, मैं उसको हुक्म इलाही कह रहा हूं। तो बेटे ने कहा या अबती अल माज़ा तुमर, ऐ मेरे अब्बा आप कर गुजरे जो हुक्म हुआ है। देखिए ये औलाद की तरबियत है। ऐ मेरे अब्बा आप कर गुजरिए जो आपको हुक्म हुआ है। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मा साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे कल कयामत के दिन सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये औलाद का जुमला था। आज हम लोग तरसते हैं, दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ऐसी तरबियत करने का हमको भी हक दे, सिला दे, मौका दे कि हम अपने औलाद की ऐसी ही तरबियत कर सकें। लेकिन मेरे भाई बड़े अफसोस के साथ यहाँ पे कहना पड़ता है कि हम लोगों ने दीन को इतना आसान, इतना मामूली समझ लिया है कि आज हमारे बच्चे नमाज भी छोड़ देते, चेहरे पे शिकन तक नहीं रहता है। छोड़ दिया फिर पढ़ लेगा, शिकन तक नहीं रहती। हमारे औलाद इतनी बड़ी बड़ी गुनाह कर रहे हैं, शिकन तक नहीं है, उल्टा सपोर्ट में आ जाते। यहाँ तो बात जबा होने की है। आप ऐसा करें कि अपने बच्चे को एक बार तो बाजार भेजिए और एक सामान आप भूल गए, दूसरा सामान, अरे बाबू ऐसा है कि फिर बाइक से जाना होगा, ये सामान छूट गया, अब आप भी ना दिमाग का सरिया, वो आपको फौरन जवाब देगा। होता नहीं जैसे घरों के अंदर अभी इसी चिराती धूप में टेम्परेचर 43-45 चल रहा है, हम सामान लेके आए हैं और अब कह रहे कि सामान आप भूल गए। कम से कम दिमाग होश में पूरा चिल्ला उठा फटा घर में लगा देगा। सब घर के लोगों का दिमाग खराब हो गया। जब तक 10 बार कोई बाजार दौड़ाएगा नहीं तब तक लोगों को चैन आएगा नहीं। लेकिन बेटे ने क्या कहा, जान लेने की बात हुई या बत्ती अलमाजा तुमर, है मेरे बेटे, है मेरे अब्बा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप कर गुजरे जो आपको हुक्म हुआ है। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मा साबिरीन, इंशाअल्लाह ताला आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये भी एक आजमाइश अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें डाला आजमाइश। और ये आसान आजमाइश मेरे भाई नहीं थी, मुंह की बात नहीं, बोल दिया बोलकर खत्म कर दिया, सुन लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे के जवाब के बाद बहुत खुश हुए, है ना। खुश होने के बाद कहाँ लेके चले गए? उनको लेके चले गए मिना, जहाँ पर आज भी सारे हुज्जाज इकराम मिना के अंदर कुर्बानी करते हैं, मिना के अंदर लेके चले गए। बेटा भी जा रहा है, माँ का भी दिल देखे, ना रो रही है, ना गिड़गड़ा रही है, ना कदम को पकड़ रही है। कैसी तरबियत की अपने घर के अंदर लेके चले गए और अपने बेटे को लिटा दिए, जैसे जानवर को लिटाया जाता है कुर्बानी करने के लिए। और जिस तरीके से जानवर के ऊपर छुरी चलाई जा रही है उस तरीके से छुरी चला रहे हो। इब्राहिम सलाम को लग रहा है कि बेटे को जमा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने दुम्बे को खड़ा कर दिया। उनको नहीं मालूम कि मेरा छुरी किस पर चल रहा है। वो आजमाइश अल्लाह ने दी। ऐसा नहीं कि आँख खोल के रखे और लड़का गाय और दुम्बा तो खुश होकर बच चला दी, छुरी चला दी, जबा हुआ, लेकिन बेटा नहीं, दुम्बा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम सलाम से कहा कि बस कद सद्दक़्त या इब्राहिम, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। इतनी बड़ी आजमाइश अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, इतनी बड़ी आजमाइश, कद सद्दक़्त रुया। कुरान ने कहा बस इब्राहिम, बस तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। जो मैंने तुमसे डिमांड किया, जो मांग की,
तुमने उसको पूरा कर दिया। तो इसी सुन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने रहती दुनिया तक कायम रखा कि जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक इंसान पूरे जमीन पर रहेंगे, तब तक ये सुन्नत चलती रहेगी हर साल। उसी में हम और आप कुर्बानी करेंगे। तो कुर्बानी हमें सिर्फ जानवर की नहीं करनी है। सूरह हज में अल्लाह ने कहा लई यनाल लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला को तुम्हारी कुर्बानी के जानवर का ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह ताला को अगर कुछ पहुंचता है तुम्हारा तकवा, तुम्हारी परहेजगारी, तुम्हारा खौफ। ये चीज था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। और आखिरी बात इनके ताल्लुक से मैं बयान कर दूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे और बीवी को छोड़कर चले गए सेहरा बयाबान में। कुछ नहीं है, दूर दूर तक आदमी, परिंदे नहीं, आदमी कहाँ से मिलेंगे? चिलचिलाती धूप में अल्लाह का हुक्म है, छोड़ के चले जाते हैं। अल्लाह की बात जब आ जाएगी, यानी एक मुसलमान की जिंदगी में सबसे बड़ा मकाम अल्लाह का होना चाहिए, सिर्फ जुबान से नहीं, प्रैक्टिकल। जब अल्लाह की बात आ गई तो हम अल्लाह के सामने अपने औलाद, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार सबको छोड़ देंगे। आज ऐसे होता है ना, आज बहुत ज़्यादा रिवाज होता है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप बारात मत ले जाया करें, ऊपर ना आए। बहुत ऐसी किस्से आई है, सुन लीजिए। हम लोग का कॉल है कि भाई शादी सादा कीजिए, नहीं खालू पहले से नाराज, 2 साल से नहीं आ रहा है, अब तो और नहीं आएगी, इसलिए टूट जाएगा। हजरत इब्राहिम नहीं कहा अल्लाह से, बयाबान में बीवी को छोड़ दो, लेडीज है, छोटा बच्चा है, जेंट्स भी कोई नहीं है, आराम भी है, तो अब हम कह रहे वहां चल जाओ, नहीं, हुक्म हुआ चल दिए, हुक्म हुआ चल दिए। बहुत दिनों के बाद, बहुत एक अरसे के बाद बेटा उनका जवान हो गया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चला फला जगह उनका बेटा रहता है, शादी वगैरह हो गई। तो आप गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अपने बेटे के पास, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इनके पास इस्माइल अलैहिस्सलाम गए, दस्तक दी, सलाम किया, अंदर से किसी खातून की आवाज़ आई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इस्माइल है, तो नहीं, वो तो बाहर गए हुए काम के सिलसिले में। खैर औरत ने घर पर बैठाया, तो बैठे नहीं, बोले और सब खैरियत है, सब घर में सब ठीक ठाक है, बड़ी मुद्दत की बात। तो उन्होंने कहा कि, उसकी बीवी ने कहा कि क्या खैरियत है, जो कमाई भी नहीं हो रहा है, महंगाई भी इतना है, परेशानी ये है, ये वो, इधर उधर की सारी परेशानी बयान कर दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है मैं चलता हूँ, जब वो आए तो उनसे कहना चौखट बदल, बस इतना बोल के चले। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, बीवी ने बताया कि आपको घूमते घूमते आए थे और आपके बारे में पूछ रहे थे, समझ गए कि वो भी नबी थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी थे, समझ गए कि मेरे अब्बा ही थे जो आए हैं। कहाँ तुमने बैठाए क्यों नहीं तुमने? नहीं हमने तो रोका, लेकिन वो बैठे नहीं। क्यों नहीं बैठे? वो एक नाशुक्रे के यहाँ बैठ ही नहीं सकते, नबी थे, पैगंबर थे। तो नहीं, हम तो बहुत कोशिश की, लेकिन बोले कि नहीं हम जा रहे हैं, बस बोलकर चले गए। तो मेरी रखी मैसेज, तो हाँ, तो बोले कि चौखट बदल दे। तो बोले इस्माइल अलैहिस्सलाम मालूम क्या बोलकर गए हैं? क्या? उनको तलाक दे दो, उनको तलाक देने के लिए बोलकर गए हैं। तुम्हारी नाशुक्री के बारे में उनको इल्म था, बताया, समझ गए ये औरत नाशुक्री कैसे साथ अपने शौहर की खिदमत कर सकती है। उन्होंने कहा मुझे कि इस्माइल जब आए तो कहना कि चौखट बदल दे, और इस तरीके से उन्होंने तलाक दे दी। इसीलिए हमेशा याद रखें मेरे भाई कि अल्लाह जिस हाल में रखे वो हाल बेहतर है। चाहे गुर्बत में रखे तो बेहतर है, चाहे फकीरी में रखे तो बेहतर है, और चाहे अमीरी में रखे तो बेहतर है। एक मोमिन, एक मुसलमान कभी भी नाशुक्रा नहीं हो सकता, समझा रहे ना? तो हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये सीरत हज़रत इब्राहिम से बड़ी मुख्तसर मैंने बयान की। अब दूसरे पार्ट में आते हैं कुर्बानी के ताल्लुक से। तो इसमें मैं बेहतर समझता हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कि कुछ इस समझ में तो पूछ लीजिए, है ना? बेहतर है कुर्बानी के मसाइल में बयान करने से बेहतर है कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग पूछिए। फिलहाल एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो अय्याम से अभी हमारा गुजर रहे हैं, आज 4 तारीख को मगरिब का वक्त हो गया, 4 तारीख हो गई, वो ना 3 ऐसे देखा 3 तारीख है, मगरिब के बाद हम लोग 4 ज़िलहिज्जा में आ गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत साफ हदीस है कि जब ज़िलहिज्जा का चाँद नजर आ जाए और तुम में से कोई कुर्बानी का इरादा करता हो तो अपने बाल और नाखून को ना काटे। ये कुछ मसला मैं बयान करता चलूँ कि मतलब कुर्बानी का इरादा करता हो, मतलब इरादा का माना है कन्फर्म, जिसको कन्फर्म है कि हम कुर्बानी करें, जो डाउट में उसको नहीं बोला जाएगा। इसलिए अल्लाह ने वो दे रखा है, और हमारे लोग की मुश्किल चाहे एक हिस्सा क्यों ना हो, एक हिस्सा भी कुर्बानी होता है। जो कन्फर्म है वो चाँद नजर आने के बाद अपने नाखून को और अपने बाल को ना काटे, ठीक है ना? नहीं काटना है। कब काटना है?
कुर्बानी करने के बाद, अगर कुर्बानी हम 10 तारीख को कर रहे हैं तो पहला दिन तो अपना जानवर जबा कर हो जाएगा तो हम काट सकते हैं। अब यह एक मसला समझ लीजिए, मान लीजिए कोई दूसरा दिन कुर्बानी करना चाहता है, पहला दिन कोई प्रॉब्लम है, कसाब ना मिले, है ना, या कोई दिक्कत है, तो जो आदमी बाल नाखून काटने से रोका गया कुर्बानी कर रहा है, लेकिन दूसरा दिन कर रहा है या तीसरा दिन कर रहा है, तो जब उसका जानवर जबा होगा तभी बाल नाखून काटेगा। ये नहीं कि 10 तारीख हो गया, कुर्बानी का दिन आ गया, हमारा हो जाए ना हम काट लें, नहीं। तरीका क्या है, नाखून और बाल तो 10 में बढ़ जाएंगे, बाल और नाखून अपना जानवर जबा होने के बाद ही काटें, चाहे मेरा जानवर सुबह में जबा हो, चाहे शाम में हो, चाहे दूसरे दिन हो, चाहे तीसरे दिन, ठीक है, ये मसला याद रखें। दूसरा चीज, ये अय्याम बहुत अहम है, इसमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करने की जरूरत है। तो तकबीरात सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तकबीरात ईदैन अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुभान अल्लाहि बुकरतम व असीला। मैं ख़वातीन से दरखास्त कर रहा हूँ कि कसरत से कलमात पढ़ें। 10 दिन जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिलहिज्जा के 10 दिन जिसमें नेक अमाल किए जाएं हर तरह के, अल्लाह ताला को जितना महबूब और पसंद है उतना पूरी साल कोई भी पसंद नहीं। बाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रमजान के 10 दिन से बेहतर है जिलहिज्जा के 10 दिन, इतनी खास ये दिन है। तो ये बहुत अहम दिन है, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 दिन का रोजा भी रखते थे, 1 तारीख से लेकर अरफा के दिन तक, यानी कुर्बानी से 1 दिन पहले तक। तो हम 9 दिन का रोजा रखें, लेकिन नफिल रोजाएं नहीं रखेंगे तो गुनाह नहीं, लेकिन सवाब का मन रखे, 3 रख ले, 2 रख ले, 1 रख ले, 4 रख ले, जितनी हमको इस्तेताअत हो, लेकिन अरफा के दिन का रोजा खास कर रखें, वो भी नफिल है लेकिन तो सवाब बहुत ज्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से कोई अगर अरफा का रोजा रखता है तो मुझे अल्लाह पर यकीन है, भरोसा है, तो 1 साल अगले 1 साल पिछले गुनाह को माफ कर देगा। तो अरफा का दिन हमारे हिंदुस्तान में पड़ रहा है जुमा के दिन, जो अभी नेक्स्ट फ्राइडे आने वाला है। तो हम अपने घर के अंदर माहौल बनाए, अपने बच्चों को, अपनी घरवाली को, बहन को, माँ को, सबसे कहे कि अरफा के दिन रोजा रखा जाए, क्योंकि भाई 2 साल के गुनाह माफ रखा, पता अल्लाह कर उसके बाद मौत दे दे तो मतलब गुनाह तो हमारे बख्श दिए गए एक रोजे की वजह से। तो और ज्यादा रोजा रखे 9 तक, लेकिन अरफा के दिन खासकर कोशिश करें कि रोजा रखे। लेकिन फिर रिपीट कर देता हूँ, वो भी नफिल रोजा, अगर अरफा का रोजा नहीं रखेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन गुनाह से जरूर महरूम हो जाएंगे, सवाब से जरूर हम महरूम हो जाएंगे। तो इसका खास ख्याल है कि 10 दिन का एहतमाम करें। अब एक आखिरी मसला, कुर्बानी कितने दिन होती है, 3 दिन की, 4 दिन, कोई 3 दिन कहता है, कोई 4 दिन कहता है, तो इसको समझना होगा। 3 दिन जो कहते हैं वो एक मिस्टेक की वजह से कहते हैं, वरना कुर्बानी 4 दिन क्या है। 9 तारीख को क्या कहते हैं, यौम अरफा। क्यों कहते हैं, क्योंकि हाजी अरफात के मैदान में जाते हैं। 10 तारीख को क्या होता है, यौमुन नहर। नहर होता है पूर्ण बहाना, जिस दिन जानवर जबाह करते हैं। हर दिन का अपना एक पर्सनल नाम है। यौम अरफा 9 तारीख, 10 तारीख क्या बोलते हैं, यौम नहर। 10 के बाद 3 दिन अय्याम तशरीक है, 11, 12 और 13, इसका भी नाम है यौम तशरीक, यौम तशरीक, यौम तशरीक। यौम की जमा क्या आती है, अय्याम तशरीक बोलते हैं, 3 को जमा हो गया। अलग अलग बोले क्या बोलते हैं, अय्याम तशरीक बोलते हैं। जो लोग 3 दिन कहते हैं वो लोग कुर्बानी के दिन को भी जोड़ लेते हैं यौम तशरीक, तो 10, 11, 12 ही हुआ। हम कुर्बानी को यौम तशरीक क्यों गए, उसका पर्सनल नाम है ना, आपका पर्सनल नाम है, हम अपना नाम क्यों दिया आपको। कुर्बानी यौम नहर को बोलते हैं 10वीं तारीख को, उसके बाद 3 दिन यौम तशरीक है। लेकिन जो लोग 3 दिन के कायल हैं वो कुर्बानी को उसी में जोड़ लेते हैं यौम तशरीक, इस वजह 3 दिन हो जाता है, 3 दिन तो है ही यौम तशरीक, लेकिन यौम नहर के बाद से है, तो 4 दिन कुर्बानी है। अब अगर कोई मसला है, जो क्योंकि मैंने बहुत मुख्तसर बयान किया ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप लोग मसला पूछ सकते हैं, इसमें से कौन सा दिन करना बेहतर है। पहला सवाल ये कि कुर्बानी किस दिन करना बेहतर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन कुर्बानी की हदीस की साफ साफ इबारत है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि आज के दिन हम ईदगाह जाएंगे, नमाज अदा करेंगे, उसके बाद कुर्बानी करेंगे। जाहिर सी बात है, नमाज ईद की नमाज कब पढ़ते हैं हम लोग, 10 तारीख को, ना कि 11 तारीख। 10 तारीख को नमाज पढ़ते हैं हम लोग यौमुन नहर को, तो उस दिन नमाज पढ़ने के बाद आप क्या करते थे, कुर्बानी करते थे। तो पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है, यही सबसे बेहतर तरीका है। बाकी आप 4 दिन तक आपको ऑप्शन दिया गया है, अफजल बात हो रही है, बेस्ट की बात हो रही है, तो आप पहले दिन करें, नमाज के बाद कुर्बानी करें। क्या मरे की बात कुर्बानी,
कुर्बानी सवाल है कि क्या मगरिब के बाद, यानी इसमें एक मतलब भी कह सकते हैं कि क्या रात में कुर्बानी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 24 घंटा में कभी भी कुर्बानी कीजिए, कोई इसमें कैद नहीं रखा गया है। इसमें एक बार इशू आया था, जैसे कोई जानवर रखता है तो मैंने एक दिन बड़ा जानवर रखा है, दूसरे दिन बोला छोटा जानवर रखते, तो हो सकता है वो बीमार वगैरह पड़ गया। तो ये एक मतलब प्रैक्टिकल ये प्रॉब्लम होता है सर। जैसे आप रखा है, एक छोटा जानवर रखा है दूसरे दिन के लिए, अब वो पहले दिन बीमार पड़ गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मगरिब मैंने अंधेरा होने से पहले कुर्बानी होती, उसके बाद नहीं होती। ना देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो भाई अपनी एक सोच है। सबसे बड़ी बात ये है कि अफजल तरीन बता दिया गया है, और ये हकीकत भी पूरी दुनिया में पहले भी कुर्बानी होता है। बहुत से लोग शौक रखते हैं कि या बहुत सी कुछ परेशानी, जैसे कसाब वगैरह की परेशानी हो जाती है, आपको मिल ही नहीं रहा है, अब वो कह रहा है कि हम दोपहर को 2 बजे तक आएंगे, तो सोचता है उससे बेहतर है कल फजर के बाद हम करेंगे, दूसरे दिन करेंगे। जिस दिन भी 4 दिन में आप करें कुर्बानी इंशाल्लाह आपकी कबूल होगी। या बात होगी बेहतर कब रहेगा, तो बयान हुआ कि पहले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका अपनाया है, हमारा भी तरीका ही होना चाहिए। दूसरे दिन कर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां तक कि इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि जानवर को औरत भी जबा कर सकती है, मर्द तो करते ही है, और कोशिश आप लोग करें कि अपना जानवर खुद से जबा करें, खुद से। सुंदर तरीका यही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 ऊँट कुर्बान किए, आप जबा करते थक गए, अली को दे, है ना, हदीस जानते हैं। तो अपना जानवर खुद से जबा करना चाहिए। तरीका नहीं मालूम तो सीख लें, है ना, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मोबाइल वगैरह देख कर पढ़ सकते हैं, कोई जरूरी कि याद करके आपको बोलना है। तो औरतें भी जानवर को जबा कर सकती हैं। मतलब जानवर के बारे में और नाम के बारे में बताइए, जैसे कौन कौन सा जानवर कौन सा बेहतर है और नाम क्या है इसका? सवाल ये कुर्बानी के ताल्लुक से कि कौन कौन से जानवर कुर्बान कर सकते हैं, और जो नाम लेते हैं कुर्बानी करते वक्त कि फला की तरफ से, फला की तरफ से। एक सवाल में 2 सवाल है। पहले सवाल जो है कौन कौन सी जानवर, तो अल्लाह ने सूरह हज आयत नंबर 34 के अंदर बयान किया कि बोले कुल्ले उम्मती जअलना मनसकन लियज़कुरुस्मुल्लाह मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हमने हर उम्मत में कुर्बानी का तरीका मुकर्रर किया कि जो कुछ हमने इनको दे रखा है उस पर वो अल्लाह का नाम ले, बहीमतुल अनआम में से। बहीमतुल अनआम कहते हैं 4 जानवर को, 8 तरह के जानवर कुर्बान कर सकते हैं। एक ऊंट और ऊँटनी 2 हो गए, दोनों के जीन्स नर मादा 2 हो गए, गाय और उसका बैल, है ना, 2 हो गए, 2 2 4, भेड़ और उसका मुन्नस 6 हो गए, और बकरी और खस्सी। 8 तरह के जानवर हम कुर्बान कर सकते। इन जानवर के अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। ये पहला सवाल हो गया। इसमें एक चीज और है कि जानवर दांता हुआ होना चाहिए, जिसको मुसन्ना अरबी के अंदर कहते हैं। यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक करते हैं, हम लोग क्या एक चीज बहुत मशहूर हो गया है कि 2 साल का जानवर होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, दांता हुआ होना चाहिए। मुसन्ना कहते हैं 2 दांत जो उसके दूध के निकल के टूट के गिर गए, उसको मुसन्ना कहते हैं। आमतौर पर जो बेचने वाला होता है वो तो अपना पूंजी लगाए, उसको तो किसी तरह माल निकाल देना है आपने, लेकिन आप समझते रहिए हमारा काम हो जाना चाहिए। तो ये इबादत है, ये आम जबीहा नहीं है। हम जब भी जानवर खरीदे, चाहे बकरा बकरी या भेड़ भेड़ी या जो भी, तो हम देखें बड़े जानवर चाहे जो हो कि वो दांता हुआ है कि नहीं। उसको कहते हैं मुसन्ना, 2 दांतों वाला। सनता मतलब होता है साल, 2 साल वाला नहीं कहा गया, मुसन्ना कहा गया है। बहुत से लोग ये सोच कर ले लेते हैं कि चलो भाई 2 साल तो हो गया ले लेना है, तो कहीं हदीस में लिखा 2 साल का जानवर। हदीस के अंदर मुसन्ना जानवर होना चाहिए। अगर मुसन्ना नहीं मिलेगा, हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने बयान किया कि मान लीजिए कि दाता हुआ ऊँट नहीं है, दाता हुआ बड़ा जानवर नहीं है, दाता हुआ भेड़ बकरी नहीं है, तो भेड़ का 1 साल का बच्चा जमा कर सकते हैं। किस कंडीशन में? जब ये चीज ना पाई जाए तो भेड़ का 1 साल का बच्चा हम जमा कर सकते हैं कुर्बानी में। तो ऐसा तो है नहीं हमारे मुल्क में पाया जा रहा है माशाल्लाह, किसी नौबत ही नहीं है इसकी। हो सकता है कहीं पर नहीं पाया जा रहा, तो भेड़ का 1 बच्चा जमा करें। दूसरा सवाल नाम की तरफ से का मामला आता है, ये बहुत अहम सवाल है। अभी मगरिब बाद एक सवाल आया कि तो शिर्क हो जाएगा। अल्लाह कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी का, अल्लाह ने कहा कि जानवर पर अल्लाह के अलावा किसी का नाम लेने से जानवर हराम हो जाता है। यहाँ तो लोगों का नाम लिया जा रहा है, तो इसकी हकीकत को समझना होगा, बारीकी को समझना होगा। जानवर को हम जबा कर रहे हैं किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो केलिए में और सेब में फर्क नहीं होता है। हमारी तरफ से, आपकी तरफ से हम नमाज पढ़ रहे हैं किसके लिए? अल्लाह के लिए। कौन पढ़ रहा है? किसकी तरफ पढ़ा गया? मेरी तरफ से पढ़ा गया, इसमें क्या करेंगे? अब कहेंगे कि चाहे तो शिर्क होगा। नमाज में तो इबादत अल्लाह के लिए करना चाहिए, अपने लिए इबादत कर, अपने लिए इबादत कर रहे हैं। हम मगरिब में नमाज पढ़े, अपने लिए इबादत किए, हम अल्लाह के लिए खड़े हुए, है ना।
आमतौर पर ये एक गलत फहमी हो जाती है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पढ़ते थे कुर्बानी की, क्या दुआ था? अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी, अल्लाह तू मुझसे कबूल कर ले, व मिन अहले बैती, और मेरे घर वालों की तरफ से कबूल कर ले। उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के ज़बह कर। तो अल्लाह का तो नाम लिया जा रहा है जानवर की दुआ करते वक्त। अब अरबी को थोड़ा समझिए, मेरे पास दुआ है रोमन इंग्लिश में भी उर्दू में, वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, एक दो दिन पहले सबको हम भेज देंगे इंशाल्लाह। अगर भूल जाए तो आप लोग हमसे मैसेज करके ले लीजिएगा। मिन्नी का मतलब होता है मुझसे, मिन मतलब होता है से, फ्रॉम। अब जैसे मान लीजिए कि आपका जानवर, ठीक है, आप जबा कर रहे हैं, आपका खुद का जानवर जबा कर रहे हैं, तो आपको नाम लेने की क्या जरूरत है? आपका खुद का जानवर है, आप सारी दुआएं पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती। आपका पर्सनल जानवर है, इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह तो मुझसे और मेरे घर वालों, सारे घर वालों तरफ से कबूल कर। हो गया? आपका जानवर है, आप हमको बुलाइए, इमाम साहब आप जबा कर दीजिए। तो हम क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन, मिन्नी नहीं बोलेंगे, मिन्नी तो मुझसे हो जाएगा और मेरा है ही नहीं, पैसा ही नहीं दी उसमें। अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन फला बिन फला, अल्लाह तू फला बिन फला से कबूल कर ले, व मिन अहले बैती, और उसके पूरे घर वालों की तरफ से। बात समझ आ गई ना? दूसरा आदमी करेगा तो मिन का इस्तेमाल करेगा, खुद अपना करेंगे तो डायरेक्ट नाम नहीं, मिन्नी मतलब मुझसे, अल्लाह जानता है। और सबसे शॉर्टकट तरीका बिस्मिल्लाह अल्लाह करके जबा करके, अल्लाह को साफ मालूम है अल्लाह ही तो पैसा दिए तो मेरा जानवर खरीदे, और उसको बताने जाए कि मेरी तरफ से, दादा की तरफ से, है ना? बात समझ रही है? पैसा तो अल्लाह ही ना को दिया है, तो आपको अल्लाह ही ना दिया है, तो जाके हम खरीद के लाए हैं, अल्लाह ना तो कैसे लाए? लेकिन बहुत से लोगों को इत्मीनान नहीं होता है, तो उनकी गैर इत्मीनान मुतमईन है, इत्मीनान कर दिलाना, मसला बता देना है, मौका में मसला बताना। बोलिए। बाद में उनका अकीदा होता है इस साल अपना नाम से कर लिए, तो आप अगला साल जो है अपने वालिद के नाम से कर लेंगे, उसके अगला। तो ऐसा कुछ नहीं है, नियत अल्लाह जानते हैं, बस वो लोग पढ़ना होगा। हाँ हाँ, मरहूम की बात हुई कि जिंदा की? मरहूम। अच्छा, देखिए सवाल अच्छा सवाल है कि बाद लोग ये सोचते हैं कि इस साल अपने नाम से कर रहे हैं, मान लीजिए हम है तो हमने जबा कर दिया, अब अगले साल अपने को नहीं लाना है, अब अगले साल आदमी चेंज कर देंगे, घर के आदमी को, कोई मरहूम की तरफ से या जिंदा ही तो किसी और की तरफ से। इसमें एक सवाल, एक जवाब याद रखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक जानवर पूरे घर की तरफ से काम करता है। मान लीजिए आप एक खसीर है ना, आपकी उतनी ताकत इस्तात है, तो जाहिर सी बात है कि छोटे जानवर में एक हिस्सा होता है, बड़े जानवर में कितना होगा? 7 हिस्सा, 7 हिस्सा, ऊँट में भी और बड़े जानवर में। तो एक